गुड मॉर्निंग सर।
Good morning and warm welcome to you all. I, Miss Jyoti Karunki, your host for today. We continue with our 102nd virtual webinar, Preventive Management in the Next Generation Healthcare in DNA, shall be taken by Mr. Gauri Sankar Parida. He shall be covering predisposed diseases, early predict to prevent, future is a genetic-based diet, and know your strength and weakness, and followed by question and answer session. Let's quickly go through the agenda. Virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Mr. Gauri Sankar Parida, question and answer session, and last closing session. Let's have a big introduction of Dr. Sundar Kataria. Sadhguru Sangh, conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with a mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadhguru Sangh is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. He is a chairman and managing director at International Certification Services Private Limited. His academic qualification is mechanical engineer, honorary doctorate in business management. His experiences are nuclear RAPP. He started his career in building India's first nuclear power plant at Rawat Bhata, Kota, Rajasthan. Oil and gas EIL. He contributed in developing India's first oil and gas field at Bombay High since its inception. DNV. He was head of industry and offshore development with DNV for 2 decades. ICS. He is founder of first Indian conformity assessment and inspection body known as International Certification Services Private Limited, which is a provider of a total quality solution under single umbrella with wide spectrum of services. His achievements and awards are Lifetime Achievement Award of NACE COCON, received several national and international awards. I request Dr. Sundar Kataria to virtually inaugurate the session. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra. A brief introduction of our keynote speaker. Mr. Gauri Sankar Parida. His designation and organizations are Wind DNA Life Sciences Private Limited. He is a calm demeanor, creative thinker, motivational speaker, and an adore wellness campaigner.
His academic qualifications are master's degree in marketing, diploma in cellular nutrition therapy and bioinformatics. His area of specializations and experiences are higher administrative positions through his vast corporate experiences like PRO, Deputy Marketing, Vice President, CEO across pharma, diagnostics and wellness sectors. He has conducted numerous training programs for various sales and marketing terms across India on health and wellness, peak performance, and leadership. Please welcome Mr. Gauri Sankar Parida. Over to you, sir. Okay, very good morning to all of you. I would like to special thanks International Certification Organizations and the management for giving opportunity to speak today. Okay, so आप सभी को यहाँ पे तहे दिल से वेलकम करता हूँ। ये वेलनेस की सेमिनार है और आज हम जानेंगे कि जो कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं थ्रू दिस न्यू टेक्नोलॉजी एरा। और उसके लिए मैं आई विल जस्ट गो थ्रू वन प्रेजेंटेशंस। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन पे। तो जैसे ज्योति मैम ने बताया कि आई एम ए CEO ऑफ विन DNA लाइफ साइंसेस और विन DNA लाइफ साइंसेस वी आर इनटू जेनेटिक बेस डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, जहाँ पे आपके जेनेटिक टेस्ट के माध्यम से हम आपको आने वाले फ्यूचर, आने वाले प्री डिस्पोज डिसीज के बारे में आपको अवगत करते हैं, जानकारी देते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि आज के डेट में अगर हम लोग एक हेल्दी सेमिनार में बैठे हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन हम अपने को पूछ सकते हैं, हाउ हेल्दी वी आर, और आई कैन आस्क यू हाउ हेल्दी आर यू। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैं कितना हेल्दी हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी रेस में हम लोग हैं। कोई पोजीशन की रेस में है, कोई फाइनेंशियल वेल्थ को लाने की रेस में है। वी आर इन ए रेस, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे हम लोग जॉब में हो। लेकिन उस सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ये हमारे हेल्दी रहना। तो पहला क्वेश्चन कभी कभी हम अपने को पूछना चाहिए कि मैं कितना हेल्दी हूँ आज मेरे प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन में, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर आई एम रियली स्टैंडिंग राइट नाउ, इन व्हिच डायरेक्शन आई एम गोइंग, whether I am going to a wellness direction or I am going really to a illness directions, there sick people are there। तो आज आप खुद को देखिए, मिररिंग कीजिए कि आज जो मेरी लाइफस्टाइल है, मेरे खाने की जो सिस्टम है, मेरे एक्सरसाइज है, जो भी है फिजिकल एक्टिविटीज है, आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं मेरा जो शरीर है, जो मेरे सबसे बड़ी एसेट है, उसको लेके मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, whether I am going to a wellness direction or really a illness direction। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ। लोग बोलते हैं कि मुझे तो पता नहीं, मैं आई थॉट कि मैं एक हेल्दी लोग हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई लक्षण नहीं है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो 80 to 20% की रेशियो हमें हम लोग हैं हेल्दी पीपल, जो अपने को मानते कि मैं हेल्दी हूँ। इट्स देयर ओन थॉट कि ओके आई थॉट कि मैं ठीक हूँ, आई एम परफेक्ट। सो ऐसे जो आज के डेट के, आज के परिभाषा में जो लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, इनकी इस प्रकार की प्रैक्टिस है। आप पहले अगर हम देखेंगे को एक व्यक्ति जन्म लेता था और एक लाइफ जीता था और एक डेथ होता था, राइट। उस दौरान आदमी अपने फुल ऑफ लाइफ, एंड जब डेथ आता था एट द एज ऑफ 90-95, कुछ लोग जो हमारे ग्रैंडफादर लोग 100 इयर्स, तो वहां पे डेथ को सेलिब्रेट लोग करते थे, राइट। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, आदमी जी रहा है लेकिन मर मर के जी रहा है। तो पहले आदमी जी के मरता था और आज जो है हम मर मर के जी रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। सो कमिंग टू दिस पॉइंट, आज के डेट में एक हेल्दी पीपल के माइंडसेट क्या है,
या जिसको हम वेलनेस इंडस्ट्री में जो लोग हैं, वेलनेस इज लाइक नो एब्सेंस ऑफ इलनेस। सो मोस्ट पीपल 80% पीपल उनको लगता है कि आई एम इन द वेलनेस इंडस्ट्री, आई डोंट थिंक मुझे कुछ बीमारी है, मुझे कुछ लक्षण है। तो ऐसे सोच रखने वाले जो लोग हैं नॉर्मली उनको क्या लगता है, आई एम परफेक्ट, मेरे को कोई स्पेसिफिक डिसीज या सिम्टम्स नहीं है, आई डोंट फील एनी नीड ऑफ प्रिवेंशन, बिकॉज हम बचपन से सुन के आए हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट दे स्टार्ट कंटिन्यूइंग द पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस जो करके आ रहे हैं, सदियों से करके आ रहे हैं, बिकॉज इट्स बीन प्रैक्टिस। उसका रिजल्ट क्या होता है? सो पीपल इन दिस काइंड ऑफ पीपल दे आर वेटिंग टू फॉल सिक। होता क्या है, कभी कभी हम लोग कैजुअलिटी में जाते हैं जहाँ पे इमरजेंसी लोगों को लेके आते हैं, तो तुरंत एक एम्बुलेंस से लोग उतरे और पूछे कि क्या हुआ, नहीं पता नहीं, पूजा कर रहे थे गिर गए, अब अभी लेके आए हॉस्पिटल में। अब जब व्यक्ति हॉस्पिटल में आता है तो सडनली उसको लगता है कि भाई मुझे इतना बीमारी हुई, मुझे पता नहीं था, डायबिटीज हो गया है, हार्ट अटैक हो चुका है, कैंसर होता है। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज कैंसर पता चलता है, जबकि उनके पास डॉक्टर्स रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग फिटनेस के चक्कर में जाते हैं, जिम जाते हैं, और उनको सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, डेथ होता है। मुझे लगता है कल ही एक कोई सेलिब्रिटी की डेथ हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी सोचे नहीं होते हैं कि मुझे कभी बीमारी होगा, सडनली उनको सिकनेस पे आना पड़ता है, और यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ उनको पता चलता है। और जब व्यक्ति यहाँ पे आता है, इस सिकनेस पे आता है, जिसको हम लोग सो कॉल्ड हेल्थ इंडस्ट्री बोलते हैं, देन दे स्टार्टेड बिकमिंग सीरियस कि हाँ भाई अभी मुझे कुछ हुआ है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय बॉडी, और रोज होप करता है कि किसी तरह आई विल बी बाउंस बैक टू एंड स्टार्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन आप सभी को पता है, ये होप करता है कि किसी ना किसी दिन मैं वापस आ जाऊं, और ये होप करता है कि मैं कभी अपना सिक इंडस्ट्री में ना जाऊं। जैसे ही व्यक्ति बीमार होता है, बीमार होने के बाद आदमी अपने लाइफ और अपने स्टाइल दोनों में सीरियस लाता है, राइट। सो जैसे ही लोगों को ऐसा लगता है कि बीमारी उनको वेकअप कर रहा है, जैसे ही बीमारी नहीं हुआ, आदमी 10 बजे उठता है। अगर आप पूछो कि भाई एक्सरसाइज, आई डोंट थिंक आई नीड एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, आई एम फिट। लेकिन जैसे बीमारी होता है, जो सूर्य की किरण कभी नहीं देखा होता है, वो सन आपकी जाके सूर्य की नमस्कार करता है, राइट। तो कभी जो सुबह ना उठने वाले व्यक्ति जाके रेगुलर सूर्य नमस्कार करता है, जब कभी दौड़ने वाला व्यक्ति आज जुम्बा, योगा सब कुछ करता है। करेला कभी देखा नहीं आदमी, आज करेला की जूस पी रहा है। बहुत कुछ हम लोग ऐसे करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये सब करने से हम वापस अपने एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब करने से एक व्यक्ति ठीक हो जाता है? द आंसर इज नो। तो फिर क्यों करते हैं? क्यों हम बीमारी होने के बाद ही अपने लाइफ को सीरियसली लेते हैं? इसकी गहराई पे अगर आप देखोगे, ये होता है कि बीमारी होने के बाद सीरियस के कारण जो सबसे रिसर्च ये बताता है कि जानकारी, और ये जानकारी हमको और कोई नहीं, हमारे प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल हमको डॉक्टर्स देते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की डायग्नोस्टिक सिस्टम से कुछ ना कुछ डायग्नोस किया जाता है, और उस डायग्नोस रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, इंप्रेशन लिखा रहता है, वहां पे डॉक्टर आपको एक इंफॉर्मेशन या एक जानकारी देते हैं कि आपको ये फलाना बीमारी हुआ है। और ये जानकारी लेने के बाद ही हम अपने लाइफ में सीरियस होते हैं और बहुत कुछ एक्शन करने लगते हैं जो हम कभी नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको डर होने लगता है कि आज अगर मैं नहीं करूंगा तो ये बीमारी मुझे डेथ की ओर ले सकती है, मुझे सफरिंग की ओर ले सकती है। ये डर के कारण हम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डर है, ये डर आपको तब आता है जब आपकी डायग्नोस होता है, और कोई ना कोई जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे एमआरआई हो, ये बीमारी की जानकारी आपको देते हैं। और जानकारी के बाद आपको डर लगता है, और एवरीबॉडी दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग जो कभी नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आपके पास, डू यू हैव एनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर फ्यूचर हेल्थ? आपको अभी तक अगर कोई बीमारी नहीं हुआ है एंड यू स्टिल बिलीव कि मुझे
मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूँ, आई एम परफेक्ट, देन द क्वेश्चन इज कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में व्हाई आई एम आस्किंग दिस फ्यूचर, बिकॉज आगे मैं आपको बताऊंगा कि बिकॉज दिस सो कॉल्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम्स इज नॉट डिजाइन इन ए सच ए वे सो दैट नो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता पाएंगे। सो नाउ दो जिन जिन लोगों को तकलीफ है, दो जो आर सफरिंग नाउ, उनको क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी ऑथेंटिक like information, or do you have any idea about the root cause of your present health challenges? Now बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, राइट, ना इधर मुझे फ्यूचर में क्या होना है, ना मुझे जो हुआ है उसकी रूट कॉज के बारे में मुझे जानकारी है। सो जितने सारे हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, जैसे मैंने बताया, तो डॉक्टर्स नॉर्मली आपको ये सारे, जब आपके पास एनी सिम्टम्स होते हैं, जब भी आपके पास कोई बीमारी होता है, तो नॉर्मली आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई हॉस्पिटल जाते हैं। सो वी नॉर्मली लाइक वेंट थ्रू ऑल दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट। मान लीजिए एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड, जितने भी नाम में नहीं लिया, कोई भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके हुए, क्या आपको लगता है ये करने से आपको आपके आने वाली बीमारी के बारे में जानकारी मिलता है? नो। जब आपको बीमारी होती है, ये जितने भी डायग्नोस्टिक सिस्टम है, अल्ट्रासाउंड से लेके एमआरआई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके बीमारी शरीर में आ चुका होता है, देन ओनली ये आपको बता पाते हैं। मतलब इफ इट इज अपीयर्स इन द बॉडी, देन ओनली ये आपके इंफॉर्मेशन सीट में आएगा कि yes, आपको ये बीमारी हुआ है। सो प्रॉब्लम क्या होता है, ये जितने सारे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, नन ऑफ दिस बिन डिजाइन के आपके आने वाले बीमारी को बता पाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम मिलते हैं, उनको लगता है कि नहीं, मैं तो रेगुलर हेल्थ चेकअप करता हूँ। सो माय फ्रेंड, जितने भी हेल्थ चेकअप आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ये सारे जो डायग्नोस्टिक सिस्टम के थ्रू आप कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप आपको आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं बता पा रहे, तो आपको प्रेजेंट डे की बता रहा है। अगर प्रेजेंट में आपको कोई डिसीज अपीयर बॉडी में नहीं हुआ है, एंड उस समय अगर आपके रिपोर्ट नॉर्मल आता है, आदमी को लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, देन यू स्टार्ट डूइंग द सेम एक्टिविटी जो आप करके आ रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई चेंजेस नहीं करते हो। और दूसरा, अगर आप करते करते कभी अगर आपको पता चला कि मुझे ये बीमारी हुआ है, उसी दिन, जिस दिन आपको डायग्नोस होता है, उसी दिन ही लेट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, किसी को डायबिटीज नहीं थी, लेकिन अभी डायबिटीज हुआ है, और ये जो फैसला है, मान लीजिए इट्स अ गैप ऑफ अनदर 30-40 डेज, ये 30-40 डेज होने के बावजूद भी हम लेट होते हैं, हमारे अप्रोच लेट होता है, हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है आज के डेट में बहुत बड़ा एक चैलेंज है पूरे समाज के लिए, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में ऐसे बीमारी पहले नहीं होता था। बीमारी की अगर हम बात करें, तो पहले जैसे अभी कोविड हुआ, सार्स कोविड हुआ, ऐसे इन्फ्लुएंजा और ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज होता था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी। लेकिन आज जो चैलेंजेस है हमारे पास, ये बीमारी पर नहीं है, क्योंकि आज देखिए इंडिया कोविड को कंट्रोल किए हैं थ्रू वैक्सीनेशन एंड ऑल। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वैक्सीनेशन को हम डेवलप किए हैं, जो हमारे इन्फेक्शियस डिसीज है उसको हम कंट्रोल किए हैं। लेकिन आज जो हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज हुआ है, ये है कैंसर, ये स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, डायबिटीज। आप देखिए ये जितने सारे बीमारी हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं आ रहा है। एक कैंसर व्यक्ति अगर आपके घर में है, आप उसके घाव में बैंडेज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उनके ब्लड एंड उनके फ्लसेस आपके शरीर में लग रहा है, डज नॉट गारंटी कि आपको उसके माध्यम से कैंसर होगा। या कोई डायबिटीज पेशेंट के साथ हम साथ में खा रहे हैं, हमको डायबिटीज होने की संभावना नहीं, ना कोई फिजिकल रिलेशन रखने से होता है। तो ना, द क्वेश्चन इज, अगर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है, तो इतना तेजी से क्यों ये बढ़ रहा है, कहाँ से ये आ रहा है? इसकी आंसर अगर हम देखेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे हेरिडिटरी या फैमिली से रिलेटेड है, जो लाइफस्टाइल डिसीज आज हो रहा है। आप देखिए, किसी फादर और मदर दोनों को अगर डायबिटीज है, या वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, देयर आर एनफ चांस कि मुझे भी डायबिटीज होने वाला है या आपको डायबिटीज होने वाला है, इफ योर पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, एंड वी स्टार्टेड डूइंग ए रेगुलर ब्लड टेस्ट, जो हमारे नॉर्मल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में होता है। और हम ब्लड टेस्ट कब तक करेंगे, जिस दिन हमको डायबिटीज ना हो जाए।
क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते रहेंगे। जिस दिन हमको डायबिटीज होगा, हम जाएंगे हमारे डायबिटीज के डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हमको पहली क्वेश्चन पूछता है कि आपके फैमिली में कोई डायबिटीज है क्या। वाई डॉक्टर आस्क दिस क्वेश्चन? फैमिली से हमारे बीमारी से क्या रिलेशन है? डेफिनेटली आप अगर मेरे सामने होते तो यही बोलते कि हाँ, ये जेनेटिक्स है, ये हेरिडिटरी है, ये अनुवांशिक है। अगर दोस्तों ये अनुवांशिक है तो ये कहाँ से आता है? क्या एक हेरिडिटरी डिसीज के लिए एक उम्र होता है कि नहीं 40 के 45 के बीच में ये बाहर रहता है और आपके शरीर में तब आता है? नो, द वर्ड हेरिडिटरी इटसेल्फ इट बिलोंग्स टू योर पेरेंट्स। सो हम कौन है? हम जब जन्म लिए, द फर्स्ट सेल, जब बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से, या हम लोग ये बोल सकते हैं द मोमेंट यू कंसीव, द फर्स्ट सेल ऑफ जाइगोट, जब पहली स्पर्म एंड एग की मिलन होती है, जो पहली सेल बनती है जिसमें से आपको पता नहीं रहता है और आप बनने लगते हो, द डिजाइनिंग ऑफ योर नोज, योर हार्ट, योर स्किन, आपके आई कलर कैसे होने वाला है, एवरीथिंग इज देयर, द इंफॉर्मेशन स्टार्ट बिल्डिंग यू। सो उसी समय से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है आपकी जेनेटिक की। लेकिन होता क्या है, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, और हमारे पेरेंट्स के पास ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है कि हमारे ऐसे कोई चीज है जो हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ है। अगर ये स्लाइड पे मैं आपको बताऊं, दिस न्यू बेबी जो आपके घर में आता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं उसकी जेनेटिक कोड में हो सकता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अस्थमा, कैंसर एंड मेनी अदर डिसीज, जो यहाँ पे पार्किंसन से लेके हम बहुत सारे डायबिटीज के लिखे हैं, वो होने की संभावना होता है। लेकिन आज ए पेरेंट्स ना, आज आज जो भी उम्र में आप आज ये सेमिनार में आप हैं, इफ यू आर न्यू टू दिस कंप्लीटली जेनेटिक वर्ल्ड, ये क्वेश्चन होता है, इज इट ट्रू कि मेरे अंदर है? यस। ना क्वेश्चन है कि ये जितने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या ये सारे बीमारी मुझे होना है या होगा? नो, ये सारे अगर मैं आपको बताऊं, दीज आर लाइक स्विचेस। जैसे हमारे घर में अलग अलग फैन की स्विचेस रहता है, टीवी की स्विचेस रहता है, हमारे अलग अलग लाइट्स के स्विचेस रहता है, ये अपने आप ऑन नहीं होते हैं, राइट? जब हम उसको प्रेस करते हैं, अगर हमको जरूरत है तो डेफिनेटली, अगर ये टीवी का है तो टीवी विल स्टार्ट ऑन, इफ इट इज ए लाइट देन लाइट विल ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज, ये ऑन होगा कब? जब हम उसको स्विच ऑन करेंगे। सो समबडी नीड्स टू प्रेस इट, राइट? तो इसी प्रकार से जितने भी आपके जेनेटिक कंडीशन है, जिसको हम लोग स्निप्स बोलते हैं या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये सब जो रहते हैं आपके जेनेटिक कोड में, तो ये स्विच की तरह होती है, और ये ऑन और ऑफ हमारे लाइफस्टाइल के कारण होती है। और इसको ऑन करने में सबसे बड़ा जो भूमिका निभाती है हमारे फूड। कहीं ना कहीं फूड जो होता है उसको स्विच ऑन और स्विच ऑन हेल्प करता है। अगर मैं डीएनए की बात करूं, तो आपको, जैसे हम आंखों में देख नहीं सकते हैं, तो ये एक इमेजिनरी हमने एक बनाया हुआ है। अगर ये हमारे सेल हैं तो बीच में उसकी न्यूक्लियस है, और 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है हमारे पास, जो हमारे माँ और फादर दोनों से आता है। और उसी के अंदर क्रोमोजोम को अगर हम, वो एक टाइट पैक्ड रहता है, देन द डीएनए एंड द सेक्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। सो जेनेटिक जो मटेरियल आपके पास, मोर देन 25,000 एक्टिव जीन्स आपके पास हैं। अगर आपके डीएनए की डेटा को हम स्ट्रेच करते हैं एक व्यक्ति को, यू कैन रीच 6,000 टाइम्स टू मून, एंड आप आ जाके आ सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, जो भी आपको डिजाइन किए हैं, अगर हम आज ह्यूमन ब्लड एंड फ्लेश, एक रोबोटिक, अगर हम मानते हैं कि हम भी एक रोबोट जैसा हम बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो डेटा हमको कोड किया है ईश्वर ने, वो 4 लेटर की डेटा है। और ये जो 4 लेटर के डेटा से पूरे कोडिंग हुआ है, जैसे हम बाइनरी की कोडिंग करते हैं 0 एंड 1 से, इसी प्रकार से ATGC, ये 4 लेटर से कोडिंग हुआ है। और उस कोडिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप कोविड के समय काफी आप देखे होंगे, अच्छा ये नया म्यूटेशन लेके आ रहे हैं, अच्छा ये डीएनए में ये होता है, तो यही है जो कोडिंग में अगर बदलाव होता है जो डीएनए में, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। इसी प्रकार जितने हमारे बॉडी में म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन के कारण हो सकता है डीएनए रेप्लिकेशन के समय हो या हमारे पेरेंट्स से हो, तो जो भी कारण हो सकता है उसकी हमको तकलीफ होती है या उसकी फायदा भी मिलती है। अगर ये पॉजिटिव है तो
पॉजिटिव साइन मिलती है, कभी नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन मिलती है, बट नोइंग इन एडवांस वी कैन रियली प्रिवेंट इट। नाउ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो हम बोलते हैं। प्रिवेंशन आप क्या लोगे? मान लीजिए मैं अभी पूना में हूँ, मैं कल ड्राइविंग करके आया मान लीजिए, तो लोनावाला में मान लीजिए बहुत बारिश है, भीड़ है। सो अगर मैं जीपीएस लगाता हूँ और मैं पहले से ही प्रेडिक्ट करता हूँ कि ओके द रोड इज वेरी कंजेस्टेड और ट्रैफिक है, सो आई कैन टेक अनदर रूट, एनीथिंग आई कैन डू बिकॉज मैंने प्रेडिक्ट किया, देन मैं उसको प्रिवेंट कर सकता हूँ। You do same thing in astroscience, right? If somebody believes this astroscience, astroscience में क्या होता है, जो astrologer होते हैं, they are not going to change the planetary systems, but what they can do, knowing in advance and predict it. अगर आपको पता है कि मेरे ये ग्रह जो है या this planetary system है, because of their systems, ये मेरे शरीर में अगले 6 साल, अगले 5 साल, इवन हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं, हम अगले कितने साल तक उसको प्रेडिक्ट करते हैं एस्ट्रो साइंस से। इफ द एस्ट्रो साइंस वी बिलीव और उसको प्रेडिक्ट करते हैं टू प्रिवेंट, यू कैन नॉट चेंज कि हाँ मैं चेंज कर दूंगा प्लैनेट को, शनि को थोड़ा आगे कर दूंगा, पीछे कर दूंगा, यू कैन नॉट डू, यू डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ। बट यस, व्हाट यू कैन डू, knowing in advance, you can start doing some actions, whether chanting mantra or wearing something, or like doing some kind of auspicious puja and all. You hope or you start doing something which can prevent that, right? इसी प्रकार से ये जीनोम साइंस है, राइट? जैसे आपका वो जन्म कुंडली होता है, you can look at this as a genome kundli, and in that also you start can predict your future. आप अपने बच्चे के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, and knowing in advance you start doing some kind of prevention। जो आप हरकत बेड पे, जो डेथ बेड हम बोलते हैं या सिक बेड बोलते हैं, कैजुअलिटी आने के बाद या आपको कोई डायग्नोस होने के बाद आप जो सीरियस एक्ट करते हैं, इट्स लाइक wearing a helmet after accident, because most people act like this। हेलमेट पहन के घूम रहे हैं पार्क में, क्या हुआ? नहीं, एक बार एक्सीडेंट हुआ था, दोबारा ना हो जाए, आई एम नाउ वेरी रियली स्टार्टिंग वियरिंग ए हेलमेट, दिस नॉट गोइंग टू एक्ट, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं, नोइंग इन एडवांस आवर ओन बॉडी, राइट? बिकॉज वी नो मेनी थिंग्स अबाउट दिस वर्ल्ड, के भाई मेरे पास अगर मोबाइल है, आई नो हाउ टू ऑपरेट दैट, और उसको ऑपरेट करने के लिए जितने एक्सपेंसिव आपके गैजेट्स हैं, इसके छोटे से एक किताब मिलती है उस गैजेट के अंदर और लिखा रहता है मैनुअल, राइट? एंड उसके पहली पन्ना में लिखा रहता है रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर यूज। आई एम जस्ट वांट टू आस्क यू, सी यू आर द मोस्ट प्रीशियस गैजेट्स बीन मेड बाय दिस गॉड, राइट? जो भी आप उसको नाम से बुलाते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी बुलाते हैं, उसकी माध्यम से बने हुए दुनिया की सबसे पावरफुल एक गैजेट हो, कहीं $1 ट्रिलियन की है ये ह्यूमन बॉडी। सो आपके पास ये अगर एक गैजेट है, इसकी मैनुअल आपके पास है क्या? डू यू हैव एनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन? डू यू नो दैट व्हाट इज माय स्ट्रेंथ एज ए ह्यूमन बीइंग? क्या आज पेरेंट्स आपको पता है कि हाँ मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मुझे उनको जिम में भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा कभी कभी हम लोग कंपटीशन में होता है कि एक पेरेंट्स अगर किसी को पास भेज रहे हैं स्पोर्ट्स में, मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे भी जाना चाहिए, विदाउट नोइंग आपके बच्चे वो कर सकता है, हम ये करते हैं, राइट? सो दोस्तों, जब डीएनए की बात हम करते हैं, नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये आता है डीएनए मतलब ये क्या, माँ बाप को जानने के लिए जो पैटर्निटी टेस्ट होता है, या नॉर्मली डीएनए आपने सुने होंगे टीवी की बहुत सारे सीरियल में, फॉरेंसिक डीएनए टेस्ट होता है क्राइम सीन में, वो तो है, डीएनए शुरू हुई से हुआ है। लेकिन आज जो बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, द रेस ऑफ द ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट हुआ, एवरी डिसीज के ऊपर 1000 जीनोम, जो 1000 जीनोम प्रोजेक्ट 1989 से शुरू हुई विद ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एंड दे स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, और आज ये मुकाम पे पहुंचे हैं कि नोइंग योर डीएनए इन एडवांस, आप आपके खुद की लाइफ को आप रोक सकते हो, यू कैन बिकम द मास्टर, राइट? जब बीमारी होता है तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे एंड विल सरेंडर के हाँ डॉक्टर साहब अभी देखिए, बट बिफोर दैट आपके हाथ में है, आपको हेल्दी रखने की पूरी क्षमता है टू अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए जो होता है आपकी कोड होता है, राइट? और आपके फूड सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कोई भी फूड आप लेते हैं, वेदर इट इज सॉलिड फूड, लिक्विड फूड, सेमी सॉलिड, ये कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन और एक एनर्जी के रूप में आपके बॉडी में
आपको ताकत देते हैं। तो ये तब होता है जब आपका डीएनए इसको समझ पाता है, और डीएनए जैसे समझता है तो डीएनए को ये कम्युनिकेट करता है थ्रू सिग्नल्स, राइट। और वो सिग्नल्स अगर मैच करता है देन डीएनए उसको एक्सेप्ट करता है, आपके एंजाइम्स बनाता है, आपके प्रोटीन्स बनाता है, और उसी से आपका कम्युनिकेशन स्पीड होता है, सब कुछ होता है। अगर ये नहीं होता है तो आपको तकलीफ होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप ब्रोकली लेते हैं, राइट। ब्रोकली हैविंग सम सब्सटेंस जो उसके अंदर है, जो अगर आपके पास कैंसर डीएनए है, जेनेटिकली यू आर प्रोन टू दैट, हो सके ये उसको स्विच ऑफ रखे, so it will help to turn off that gene। so आपके पास कैंसर होने की संभावना के बावजूद भी, because you are having the right genetic diet और right diet, आपको हो सकता है आप एकदम जिंदगी जियोगे, अच्छे से जिंदगी जियोगे, and you can really live a healthy life। same way there are some substance like resveratrol जो स्किन, ग्रेप स्किन के ऊपर रहता है, और इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन सप्लीमेंट्स। अगर ऐसे कोई सप्लीमेंट्स आप खाते हैं, ये सप्लीमेंट्स अगर आपके बॉडी में है, इट विल टर्न ऑफ योर कैंसर जीन। उसी के साथ साथ एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे आप देखो उन लोगों को, या मान लीजिए XYZ किसी का नाम लीजिए, आपके पड़ोसी हैं, अरे वो कभी ना शराब पीते हैं, ना कभी स्मोकिंग करते हैं, इतने स्पिरिचुअल आदमी हैं, लेकिन उनको कैंसर कैसे हुआ? मैं आपको बताऊं कि एक समोसा भी आपको कैंसर करने की संभावना भी है, रखता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। आज देखिए समोसा हमारे घर में नहीं बन रहा है, पहले कोई भी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट की बात करें या कहीं पे आपके नजदीक जहाँ पे समोसा बनता है, बड़ा बनता है, आप अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा कढ़ाई आपको मिलेगी, एक साथ 50-100 लोगों के लिए बनता है। उस कढ़ाई के अगर आप थोड़ा झांकोगे, आज से देखोगे, तो उसके अंदर रहता है भरपूर ऑयल, राइट। तो जब हम बात करते हैं डीएनए की, कि आपकी हर फूड कोई ना कोई सिग्नल देता है। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे ये शरीर है, ये शरीर आपका नहीं, ये आपके पेरेंट्स को बिलोंग्स करता है, उनके पेरेंट्स को बिलोंग्स करता है। और जितने भी आपके पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो आज भी जिंदा है आपके बॉडी में इन फॉर्म ऑफ डेटा, राइट। भले ही वो अपने शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन आपके शरीर में है। अब होता क्या है प्रॉब्लम, कि जो मेरे पेरेंट्स मेरे बॉडी में हैं, जो फूड वो कंज्यूम नहीं किए हैं, जिससे ये शरीर वो बना है, वो फूड अगर मैं कंज्यूम करता हूं, और उस फूड से जो सिग्नल मुझे पास होता है, अगर वो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो डेटा अगर मौजूद नहीं है, तो हो सके ये रिएक्टिव हो, और कभी कभी उस रिएक्शन को हम एक बीमारी की लक्षण या सिम्टम्स के रूप देते हैं। नाउ कमिंग टू दैट कढ़ाई जिसमें तेल है, पहला तो है 80 to 90% जितने समोसा और जहां पे बन रहा है, वो सारे कोई बन रहा है, वो बन रहा है पामोलिव ऑयल से। ना अगर आप गहराई से सोचोगे, क्या पामोलिव हमारे जेनेटिक फूड है? नो। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी इंडियन ओरिजिन पामोलिव ऑयल नहीं खा रहे थे, इट वाज नॉट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, राइट। तो धीरे धीरे हमारे अगर इंडिया को बताएं तो सब नॉर्थ जो होते हैं, दे कंज्यूम मस्टर्ड ऑयल प्लेंटीली, महाराष्ट्र एंड ऑल लाइक गुजरात मूंगफली खाते हैं, साउथ में कोकोनट। तो ऐसे हमारे ऑयल है जो जेनेटिकली एक इंडियन बॉडी समझता है। लेकिन व्हेन इट इज लाइक पामोलिव ऑयल, द फास्ट है कि भाई वो हम जानते नहीं, तो मेरे बॉडी तो रिएक्टिव होगा ही होगा। नाउ कमिंग, अब मान लीजिए फ्रेश पामोलिव में आपका एक समोसा बना, क्या वो दूसरे दिन वो पामोलिव को फेंक देते हैं? नहीं। पामोलिव जो बनता है उसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल, राइट। बहुत ही गंदा को हम लोग खाने के लायक बनाने के लिए एकदम हाई हीट में उसको फिल्टर किया जाता है, और आपको सफेद सफेद लगता है, आपको लगता है ये बहुत अच्छा तेल है। और फिर हीट के बाद वो आता है कढ़ाई में, और एकदम हीट में आपको समोसा बनती है। दूसरे दिन उसको फिर से हीट करते हैं, तीसरे दिन उसको फिर से हीट करते हैं। हम गाड़ी से जो इंजन ऑयल निकालते हैं ना काला काला, जब तक वो काला होके उसको देखने की, मतलब वो बोलते ना कढ़ाई ना चले, तब तक वो ऑयल रीहीट होता है। नाउ रीहीटिंग एनी सब्सटेंस, जो ऑयल है जो ऑलरेडी हाइड्रोजन या जो हाई हीट से बना हुआ है, it become carcinogenic, right? So this carcinogenic substance में तले हुए जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास वो कैंसर म्यूटेशन है, that samosa can trigger that particular gene, and the
आपको पता है उसके बाद क्या होने वाला है, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो झूठ नहीं बोलेगा, मतलब इट स्टार्ट वर्किंग। अगर मैंने टीवी के स्विच ऑन कर दी तो टीवी तो ऑन होगा, वो नहीं बोलेगा नहीं सर मैं ऑन नहीं हुआ इसलिए आपका मूड नहीं था, इट विल नॉट लाइक दैट, राइट। सो इसी प्रकार से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नोइंग इन लाइक नो एडवांस वी रियली कैन हेल्प इट। सो हम यहाँ पे इंडिया में हम शुरू किए हैं, हम मोर देन 150 जेनेटिक टेस्ट लोगों को करते हैं इन एडवांस। आपको बताते हैं कि थ्रू सलाइवा आपके लाल से, जबकि डीएनए कोई भी आपके हेयर, आपके नेल, आपके स्किन कहीं से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो थ्रू योर सलाइवा वी कैन डू मोर देन 500 पेजेस की रिपोर्ट आती है, और आपको हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड योर रूट कॉज ऑफ योर इलनेस, एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या क्या आपको तकलीफ होने वाले हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट एक्टिंग बिफोर इट अपीयर्स इन द बॉडी, और आप अपने को हेल्दी रख सकते हो, अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हो। बहुत सारे लोग मोटापे से परेशान हैं ना। मैं अगर बताऊं, अगर ओबेसिटी एक सिंगल कॉज होता तो सिप्ला से लेके बड़े कंपनी कोई ना कोई एक दवाई निकलता और सारे हम लोग मोटापे से मुक्त होते। डीएनए टेस्ट करने के बाद you will understand what exactly the root cause of your obesity. बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकता है, and once you know the root cause, acting on the root cause will be very simple. आप immediately उसके ऊपर काम कर सकते हैं, right? आपको हम यहाँ पे बताएंगे what kind of diet is suitable for your genetic type, जहाँ पे आपको हो सकता है। आपके मोटापे के कारण भी हम ढूंढते हैं, so that you will know, understand, okay, these are my like you know जो है मेरे वीकनेस है जिसके कारण मुझे शायद मोटापा आ रहा है या ओबेसिटी हो रहा है। आपके किस प्रकार से ऑयल से किस प्रकार से बॉडी रेस्पॉन्स कर रहा है ये हमको बताएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, विदाउट नोइंग कि मेरे चिल्ड्रंस की या मेरे किड्स की क्या स्ट्रेंथ है, हम उसको एक्सरसाइज के लिए भेज देते हैं, जिम भेज देते हैं, बहुत सारे एथलेटिक में भेजते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरा इंजरी रिस्क कितना है, क्या मेरा नी इंजरी होने वाला है, क्या मेरा एंकल इंजरी होने वाला Меня है। нежно, еби мою промежность, еби пока не кончатся силы и надежда. Еби меня нежно, еби мою промежность, еби пока не кончатся силы и надежда. Еби меня нежно, еби мою промежность, еби пока не кончатся силы и надежда. Еби меня так, словно ебашишь повстанцев. Еби меня спящий, еби меня в танце. Еби через рот, через уши и плечи. Just a Еби меня minute. на стенке раскаленной печки. Еби меня алмазной киркой из Майнкрафта. Еби меня просроченным пивом из Воркрафта. Еби меня горохом, еби меня пельменями. Еби меня сутками, еби меня неделями. Еби, 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 еби. सर दनिल जी आप अपने माइक को ऑफ कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, so now we'll understand the physical. Еби меня нежно, еби мою промежность, еби пока не кончатся силы и надежда. So sorry for the disturbance, sir. No I think there was some technical issue hacked by someone else. So sorry for the inconvenience, sir. I think Mr. Daniel जो है उनके I think Yeah, I just removed, sir. I just removed. no problem. Okay, Yes. so the same way we can understand in advance. अगर मेरे फैमिली में हार्ट डिसीज है, अगर मुझे हार्ट की बीमारी है, माय कोलेस्ट्रॉल, माय लिपिड, एवरीथिंग आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। आज के डेट में बहुत सारे हम इंडियन को देख रहे हैं बाय ड्रिंकिंग कॉफी एंड टी, बिकॉज आपको मैं इंफॉर्मेशन दूं, टी एंड कॉफी इज नॉट ए ओरिजिन ऑफ इंडिया, राइट। तो धीरे धीरे हम लोग पहले जो चाय पीते थे, आप देखिए पूरे हम क्या चाय पीते थे, कोविड ने पूरी इंडिया को बताया, दादी माँ की कड़ा बोलते हैं हम लोग उसको। हम पहले लाइक नो अलग अलग प्रकार के हर्ब्स में तुलसी डालते थे, उसकी चाय पीते थे। नाउ टी एंड कॉफी हैज बिकम लाइक रात को 4 बजे भी मिलता है, अर्ली मॉर्निंग भी मिलता है, राइट। और बहुत सारे ऐसे कॉफी सब हो चुके हैं, इंटरनेशनल कॉफी हम पी रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके डीएनए में नहीं है, इफ यू आर, आपके कैफीन जो होता है टी एंड कॉफी में, अगर आपके शरीर में मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, इट कैन रिस्क टू सडन कार्डियक प्रॉब्लम्स, जो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हो रहा है। होमोसिस्टेन रिस्क, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, राइट।
और ब्लड प्रेशर होने की अगर हम रूट का जो हमको पता नहीं है, तो हो सकता है कभी कभी कुछ विटामिन जैसे कमी के कारण हमारे होमोसिस्टिन बढ़ जाते हैं। होमोसिस्टिन बढ़ने के साथ हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, और उसी से रिलेटेड हम सोचते हैं कि चलो मुझे भी ब्लड प्रेशर हुआ, आई शुड कंज्यूम लाइक ब्लड प्रेशर मेडिसिन। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मुझे ब्लड प्रेशर हुआ क्यों। उसी प्रकार से बहुत सारे विटामिन है जो कैंसर के कारण हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारी के कारण हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12। बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन लोग हैं जिनको विटामिन B12 बॉडी कम बनाता है, लेकिन बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोगों को हम डीएनए टेस्ट करने के बाद देखते हैं उनके डीएनए में म्यूटेशन के कारण विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी बहुत कम हो रहा है। सो अगर विटामिन B12 मुझे बन नहीं पा रहा है और कम ऑब्जर्व हो रहा है मेरे बॉडी में, तो उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी बीमारी हो सकता है। हो सकता है ब्रेन फॉग हो, उससे होता है मसल्स इंजुरी हो, डिप्रेशन हो। इसी प्रकार से विटामिन डी, आज न्यू रिसर्च हो रहा है, अस्थमा बहुत सारे जो छोटे बच्चों को आज के डेट में हो रहा है इज बिकॉज ऑफ विटामिन डी। और कोविड के बाद विटामिन डी डिफिशियंसी मैक्सिमम लोगों को हो रहा था, जिसमें इम्यून पावर कम हो रहा था। बिकॉज आज के डेट में जो फ्री विटामिन है, विटामिन डी, सनशाइन विटामिन बोलते हैं। हम लोग ऑफिस से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, लिफ्ट से निकलते हैं, गाड़ी से ऑफिस, एसी से फिर ये सूर्य की किरण जाते हैं, तो इतने हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं कि सूर्य भी टेंशन आता है कि ये सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं। तो आज के डेट में बहुत सारे विटामिन की कमी भी होता है जो डीएनए से आपको पता चलता है। बहुत सारे फूड एलर्जी होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ग्लूटेन की। ग्लूटेन इज ए ग्लू, और इस प्रोटीन होता है जो हमारे आटे में रहता है, स्पेशली इन व्हीट में रहता है जो हम खाते हैं। अगेन मैं आपको बताऊं, जो आटा आज के डेट में खा रहे हैं, गेहूं की स्पेशली, वो भी हमारे इंडियन ओरिजिन नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को मोर देन 50 डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज आटे से होता है, गेहूं के एलर्जी से होता है। हमारे पहले आप देखिए मिलेट्स हम बहुत खाते थे, और आज पूरी की पूरी डाइटिशियन पूरे सब जगह पे बोल रहे हैं यू स्टार्ट यूजिंग मिलेट्स, चाहे नाचनी हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, उसी में आज भी रोटी बन सकता है। और बहुत सारे लोग धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं उसी के हिसाब से। मिल्क अगर आपका बॉडी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, आपके बहुत सारे बच्चे देखो नखरा करते हैं, नहीं मुझे दूध नहीं पीना अच्छा लगता है। और आज ये पेरेंट्स हमको क्या लगता है, यार दूध तो बिल्कुल किसी तरह तो पी ले, और दूध पिलाने के चक्कर में हम उसको कुछ भी डालते हैं। उसके अगर अच्छा लगता है बर्नवीटा तो बर्नवीटा डालो, उसको जो अच्छा लगता है किसी तरह हम ये प्रे करते हैं वो दूध पी ले। बट अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हम प्रे करके उसको डरा के अगर दूध पिला रहे, हो सकता है उसको बहुत सारे बीमारी उसी से हो सकता है। सो इसीलिए मतलब आज ये पेरेंट्स दो लिविंग गॉड, यू शुड ऑल्सो नो आपके बॉडी, बच्चे के बॉडी में भी क्या पच रहा है नहीं पच रहा है, राइट। तो इसी प्रकार से एडिक्शन, हम मान लीजिए कोई बच्चा अगर बोल के आके बोलता है कि मुझे सिगरेट पीने की मन कर रहा है, हम उसको गुस्सा करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज ए रिएक्शन ऑफ द बॉडी एट डिमांड। अगर उसके बॉडी में निकोटिन की मतलब कुछ हार्मोन प्रॉब्लम हो रहा है, वो हैप्पी हार्मोन को डिपेंडेंसी होगा, इट विल स्टार्ट सर्चिंग वेयर इट विल हैप्पी। सो उसके लिए बहुत सारे ऐसे स्मोकिंग ये कर सकता है। अगर आपको पहले से पता है, वी हैव सो मेनी सप्लीमेंट, हमारे ऐसे बहुत कुछ फूड हैं, अगर आप वो कंज्यूम करते हैं, आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, और आपको एडिक्शन जो डिपेंडेंसी होता है उससे बचा सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे चीज जो है, ड्रग एडिक्शन के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं, आपके स्किन हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, आपके ड्रग रेस्पॉन्स, इफ यू आर कंज्यूमिंग सम ड्रग्स, लेट्स से यू आर डायबिटिक पीपल एंड कंज्यूमिंग मेटफॉर्मिन, नाउ थ्रू दिस जेनेटिक टेस्ट यू विल अंडरस्टैंड वेदर मेटफॉर्मिन इज गुड और बैड फॉर मी। बिकॉज कुछ लोगों को मेटफॉर्मिन जेनेटिक के कारण, रिएक्शन के कारण उनको बहुत सारे अदर प्रॉब्लम होता है। विटामिन B12 ड्रास्टिकली कम होता है, बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशन आता है। इसी प्रकार से जो कार्डियक ड्रग भी लेते हैं, वहां पे भी उनको हम लोग बताते हैं कि यस आपको ये ड्रग लेना चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए, सो इट कैन स्विच टू अनदर ड्रग। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की पूरी आता है कि आपके बॉडी किस टाइप का है, क्या आप मैराथन जा सकते हो, क्या वेट लिफ्ट कर सकते हो, क्या बहुत सारे ऐसे लोगों के जिनको ACTN3 टाइप के जीन से जो लोग बहुत सारे ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। सो इफ यू रियली, और आपके बच्चे अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, या आपका बॉडी किस प्रकार से फिटनेस को झेल सकता है, ऑल्सो यू विल हैव दैट इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार से वुमेन्स हेल्थ, मेन्स हेल्थ, आपके डिटॉक्स है ना, किडनी हेल्थ, तो बहुत सारे ऐसे एरिया जो है आपके यहाँ पे हम लोग जानकारी देते हैं, सो दैट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंड कि हाँ इन एडवांस माई जेनेटिक रिपोर्ट, वेदर इट इज वेट मैनेजमेंट और ऑटोइम्यून डिसीज। नाउ ऑटोइम्यून डिसीज बहुत बड़ा एक
मुद्दा बना जब हम लोग कोविड को सामना किए। कोविड वही लोग सामना किए और सक्सेस हुए जिन लोगों के पास इम्यून पावर था। सो आई थिंक इम्यूनिटी कितना अच्छा है आपके बॉडी में, ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड हियर थ्रू योर जेनेटिक रिपोर्ट। सो जो जेनेटिक टेस्ट होते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, जो भी आपको इन्वाइट किए हैं या ज्योति मैम हो सके आपको हेल्प कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस में होता है। वी नीड योर 2 ml ऑफ योर सलाइवा, और आपके सलाइवा से हम प्रोसेस करते हैं, आपकी पूरी जेनेटिक डेटा आता है, लगभग 500 पेजेस की रिपोर्ट होती है। जैसे होते हैं हमारे जेनेटिक एक्सपर्ट रहते हैं, those will help you to understand your genetic report, also will allow you to listen to what you want to achieve, right? If you are really suffering, what is that? If you are not suffering, you want to achieve something, what is that? अगर आपके फैमिली कोई हिस्ट्री है, so knowing in advance will start designing a gene based diet. Now when we say diet, now बहुत सारे ऐसे डाइटिशियन है जो आपको हो सकता है डाइट दे, बट हो सके ये आपके लिए ठीक नहीं हो। विल अंडरस्टैंड योर जीन, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे ब्रेकफास्ट खाया जाता है, क्या क्या ग्रेन्स लेते हैं, कौन सा ऑयल आपको यूज करना चाहिए। सो स्पेसिफिकली टारगेटेड डाइट आपके लिए बनता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू योर डिनर, विल डिजाइन इट। ऑल्सो विल डिजाइन योर एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी, लुकिंग एट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपके मसल स्ट्रेंथ, आपके इंजुरी रिस्क को देखते हुए विल डिजाइन सच एक्सरसाइज सो दैट आपको कोई इंजुरी ना हो और आपके बॉडी की आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हो, एनर्जी को बरकरार रख सकते हो। इसी प्रकार अगर कोई प्री डिस्पोज डिसीज है, हाउ टू प्रोटेक्ट दैट, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ रेगुलर सप्लीमेंट, अगर कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत है या कोई टेस्ट की जरूरत है, वो भी हम आपको बताते हैं, सो दैट नोइंग इन एडवांस यू स्टार्ट एक्टिंग। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल फिगर अगर बताऊं, जैसे अंजेलिना जोली है, she was diagnosed through DNA, like 87% chances of breast cancer and ovarian cancer, because उसके मॉम एंड उसके ग्रैंड मॉम को हुआ था। सो थ्रू डीएनए टेस्ट इन एडवांस वो आज जिंदा है, बिकॉज आपको पता है एक बार कैंसर होता है कितना रिस्क होता है। सो इसी प्रकार से बहुत सारे जैसे आप देख सकते हो, जैसे गजनी या जो दंगल मूवी हुआ था इनका, आमिर खान का, थ्रू डीएनए टेस्ट उनको वजन भी बढ़ाना था अग्रेसिवली, और उसी के सेम टाइम व्हाट डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनको वजन भी कम करना था। तो ये पॉसिबल हुआ था थ्रू दिस दंगल मूवी। इसी के साथ साथ आज के डेट में जो क्रिकेट में परफॉर्मेंस हो रहा है, आप देखिए पहले कुछ भी कोई धोनी 6 लीटर दूध पीता था, लेकिन जरूरत नहीं कि बाकी कोई 6 लीटर दूध पचा पाए। सो आज के डेट में बीसीसीआई वर्ल्ड के जितने सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं, हर एक व्यक्ति जब एंट्री लेता है क्रिकेट में तो उसकी डीएनए जांच होता है, और अकॉर्डिंग टू दैट उनको एक्सरसाइज अलग अलग की, उनके इंजरी रिस्क को देखते हुए उनको एक्सरसाइज दिया जाता है। बहुत सारे महानुभूमि जो हमारे साथ भी डीएनए किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम शायद यहाँ पे फोटो नहीं डालते हैं, जैसे ये बॉलीवुड के सिंगर हैं, आप हमारे सिद्धार्थ भाई जी हैं, जो आप सिम्बा जैसे बहुत बड़े बड़े मूवी में भी रोल किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हमने, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जिनके जो आए हैं आगे और दे नो एडवांस एंड स्टार्ट एक्टिंग, और उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव भी हुआ है। तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि प्रेडिक्ट देन प्रिवेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तब संभव है इफ यू प्रेडिक्ट देन यू कैन रियली प्रिवेंट। सो दिस इज ए प्रीशियस बॉडी, राइट? सो यू लिसन योर ओन थिंग। आप छोटे छोटे चीज को कभी कभी हम इग्नोर करते हैं। सो विद दिस आई वुड से टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस वेयर आपको वी नीड टू लिव। उसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी तो आपने पेशेंटली सुना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आंसर विल straight away go to Jyoti ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. It was such a great presentation. Now I would like to request everyone, please put the questions in the chat box, or you can unmute yourself and ask directly to the sir. Sir, there is a one question.
asked Yeah. by Miss Sana Khan. Uh, How many diseases can be treated from genetic coding? okay. So now DNA is like your X-ray, like your ultrasound, and like a diagnostic tool. DNA is not going to heal. DNA is going to diagnose that. Now the question is, any disease जो भी आपके अगर प्रीडिस्पोज है और ये एडवांस आपको डीएनए बता रहा है, हुआ नहीं तो ना हो, उसके लिए जो जो चीज है, we start doing 360 degree changes in our life, whether in terms of your exercise, whether in terms of your physical fitness, whether your supplement, whether any deficiency, so you can do that. So अगर ये करेंगे, so we can prevent almost all diseases, right? Because knowing in advance is everything. So this is just a diagnostic tools and will help you to prevent it through right wellness approach or holistic approach, you can say. Okay. Second question is asked by Ramnath Verma, sir. All celebrities and OZA sites have done saliva DNA test. So he's giving information. There is no question. Sorry, sir. Oh, information. Yeah, it's information. Yeah. Yeah. Okay, so any questions is there? So you can raise the questions. You can talk to our customer number. I think Jyoti ma'am, I think you have number of Reshma and our customer care. So anybody, you can Yes. forward them any question. I will answer them. My team is there to help you out. We are in a mission to help people because 80% people, they are in a queue to become sick one day. And this is a mission. Let's healthy people to stay healthy, and so that more and more people can start living a healthy and happy lifestyles, right? That's the whole idea. Sorry. I would like to say that sir, Winday Life Science has raised their hand, so please unmute yourself and ask directly question. I request you all to unmute yourself and ask directly question, or you can put the question in chat box. We'll wait for some Hello. time, sir. Yeah. Hello. Yes, we can hear you, ma'am. Yeah. Good morning, good morning to everyone. So I just had one question regarding how hormones, neurotransmitters are being helping in genetic coding. Come again? How? So like how hormones and neurotransmitters are related to your DNA genetic coding. Do they have any relationship with that? Yeah, this is relation is there, but see, there is two types Okay. of DNA test. So basically what we are doing is all is related to wellness, in the preventive DNA test. Also, we have a pharmacogenomics where if there is any rare disease, if somebody want to have any specific disease related DNA test, like cancer, if you want to know the root cancer or need to understand the tumor marker, to understand what kind of mutation this specific tumor has, or any kind of specific disease related. So through this, we need
your prescriptions, and we need a pre-counseling through your health professional, or we need that prescriptions, and we can go through that. So sometimes it need blood or that specific sample जो हम करते हैं, and we do that through specifically hospitals and doctors, right? Any specific neuro or disease like that. Okay, sir. Yeah. And so last question from my end. It's not been appropriate to ask you direct costing, but can you provide me the range for a genetic coding for an individual? See, genetic code for individual, we do this complete comprehensive wellness test, where we there will be 500 pages of report, and we cover all these wellness aspects. Along with that, we also do counseling, and this will be a Zoom one-to-one counseling where you and your professional can be there, or your parents or anybody can be there. So my expert, they will help you to understand the entire things. Then we'll do a completely gene-based diet plan and lifestyle modification plan. Again, आपको हम ये देते हैं, and ये पूरी की पूरी एक completely packages है, जिसमें आपका DNA banking भी होता है, आप बीच में कभी कर सकते हो. So the cost of this is around 35,000 rupees. But जैसे अभी ऐसे हम प्रोग्राम आते हैं, और ऐसे कोई भी हम स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाते हैं, so we give them good discount. So आप मेरे कस्टमर केयर में टच में रहिए, अराउंड 20 to 30% जो बेस्ट हो सकता है आपको डिस्काउंट हम कर देंगे. बट आपको रेफर देना है कि हम ICM की मीटिंग किए थे, so that we can do that. Thank you. Thank you, Sana ma'am. I hope you got your answer. Okay, now one question is how genetics impacts and happening. It means by my parents. See, if your parents suffering from any disease, when we say parents, you can only relate to your father and mother, but you need to understand your body is not only connected to your father and mother, also their father and mother. So मान लीजिए आपके मम्मी के मम्मी शायद आपने राइट, सो आपके मम्मी के मम्मी से भी आपको आ सकता होता है, बट हम देखते हैं व्हाट माय मॉम एंड डैड, whether they are having diabetes or any specific disease, but हो सकता है कि आपके फैमिली इज it's like you don't know कि आपके फैमिली कहाँ से कुछ आ सकता है, आपके एंसेस्टर में कौन कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ माइग्रेट हुए, क्या उनका लाइफस्टाइल था, क्या फूड हैबिट था. सो दैट ऑल्सो वन क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या गारंटी मुझे होगा? नॉट नेसेसरी, राइट? इट्स ए प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आपके पेरेंट्स अगर अभी जो आपके माँ बाप है अगर उनको है तो चांसेस इज वेरी हाई. बट अभी आपके पास वो आया है नहीं है, वंस यू विल डू द DNA टेस्ट एंड अंडरस्टैंड इट, तो आप यू स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड योर फूड, सो वंस यू विल चेंज इट, द प्रोबेबिलिटी विल बी देयर, बट आपको होने की जो संभावना है वो टल जाती है, राइट? हो सकता है कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं है, राइट, लेकिन हमको भी होता है, बिकॉज एक होता है नेचर एंड होता है नर्चर, राइट? अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा एक साथ पैदा हुआ और डिफरेंट दो पेरेंट्स के पास रहा, दो ट्विंस पैदा हुए और अलग अलग पेरेंट्स के पास रहे, और जिस प्रकार से वो नर्चर होंगे, हो सका है एक बच्चा ब्रेकफास्ट भी मैकडी में कर रहा है और चिकन बर्गर खा रहा है, ये खा रहा है, दूसरे बच्चा एकदम स्पिरिचुअल ये में रह रहा है, वो चैंटिंग कर रहा है. एक साथ जेनेटिक कंडीशन हो सेम होने के बावजूद, बिकॉज दे नर्चर्ड इन ए वेरी डिफरेंट वे, सो द आउटसाइड इम्पैक्ट ऑल्सो कैन हैव देयर. तो उनको भी चांसेस है ओबेसिटी होने का. तो अगर उनको ओबेसिटी हुआ, जेनेटिक के लिए नहीं था, लेकिन बिकॉज दे स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑल दिस थिंग्स, ओबेसिटी हुआ, तो ओबेसिटी रिलेटेड बहुत सारी बीमारी उनको होगी, हो सकता है उनका जेनेटिकली स्ट्रांग हो. सो बोथ आर हमारे नेचर एंड नर्चर, जो हम जेनेटिक लेके आए हैं और जो किस प्रकार से हम उसको नर्चर कर रहे हैं, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ.
Okay, when we talk about like, Mr. Burma was asking about like, how we can really reverse the heart disease memory. So we have started working on reversing diabetes. Obesity can be managed. Like, if your family is suffering from any kind of heart disease or any kind of this lifestyle related disease, we can reverse. But you need to follow the diet. You need to follow the lifestyles. Definitely, many people they are reversing. There are so many testimony we have. There are so many happy families they have started, because क्या होता है, what you are doing, if you don't know it is मतलब wrong for you, it might be good for somebody else. आपके हो सकता है आपके पड़ोसी के लिए अच्छा है, आपके बाजू लोगों के लिए अच्छा है, but it might be very आपके लिए bad हो सकता है. So once you know which is bad, which is good for you, and once you start doing it every day, see, our habit is like, practicing little bit of every day, it start become your habit. So once you'll become your good habit from your bad habit, definitely you start following that. और बहुत सारे लोगों को हमने reverse किया है, and definitely you also can do that if you do act like that. So, okay, we have given our number. If anybody having question, please note down this number 9372390103. I will repeat it 9372390103. You can raise your question or koi bhi hai related to your that price and all. That will be our team. They will coordinate with you. They will help you out. And those who have attended this seminar, और अगर सेमिनार नहीं किए हैं एंड दे बिलोंग्स टू दिस फैमिली, आप बोल सकते हैं कि यू बिलोंग्स टू इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फैमिली, एंड विल डेफिनेटली गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट टू यू. Thank you, sir. And I shared Miss Reshma ma'am's number. Yeah. And even if anybody has questions, so they can directly contact us, so we can contact them. We will share with you all the details. So you can refer the mail ID and Miss Reshma ma'am's contact number. Thank you, ma'am. Yeah. There is one more mail ID, sir. I'll share with you. Just give me some time. There are no questions right now, sir. So shall we go ahead? Yeah. So With I your think, permission. yeah, please. Yeah. So thank you, sir, for such a great presentation. I hope everybody has, points about this, like how to manage all these things, how to manage your time with all the nice habits, right? So thank you so much. It was such a great presentation, sir. Thank you so much. Thank you entire team. Thank you, Jyoti ma'am, for this Yeah. beautiful opportunity, and we love to come with new different subject whenever is required. I'm very happy and proud to be here. Thank you very much. Yes, sir. I'll share with you this my screen. There is some information. Yeah. So there is a next session on 19th November, shaping the world economy. So it will be taken by Mr. Murlidhar Vaiti, sir. He will be covering economic and geopolitical scenarios, global tensions, possible easing, and the economy recovering, exemplar of stagflation, and technology in unprecedented connectedness. And last will be question and answer session. ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS, and OHSS, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Telugu, and Hindi. For reading any of the above books, please contact Ms. Sushma Kindalkar, ma'am.
feedback form, please register on www.sadgunsang.org and go in your login and give feedback. So on the behalf of the Sadgun Sangh team, I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. So now we officially closing the session. Thank you all. Thank you so much.